السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. ساری تعریف و توصیف اور حمد و ثنا اور کبریات صرف اللہ کی سزاوار ہے اور وہی اس کا مستحق ہے، اور اس کے بعد صلاۃ والسلام ہو ہمارے آخر رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے نامی پر، اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ صحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم سامعین کرام، امید ہے انشاءاللہ میری آواز آپ لوگوں کو واضح آ رہی ہوگی، آواز کلیئر ہے انشاءاللہ۔ طيب، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ ہم نے پچھلی کلاس میں پچھلی کلاس میں یہ میت و غسل دھونے کے مسائل اور اس کی صفت ہم نے پڑھ لی تھی، اور ہم آج انشاءاللہ مکمل کریں گے اس کو۔ کچھ تنبیہات باقی تھی، اس کو آج مکمل کریں گے۔ میت کے غسل کے متعلق جو تنبیہات ہے اس کو انشاءاللہ آج اسے مکمل کریں گے باذن اللہ تعالی۔ طيب، تو اس میں سے جو تنبیہات ہیں اس کے متعلق، اس میں سے پہلی جو تنبیہ انشاءاللہ جو ہے کہ اگر میت کو غسل دینے کی صورت میں، اور اگر میت کے غسل دینے کا اگر وقت آئے تو اس وقت پانی نہ ہو تو تیمم کرائیں گے۔ اور جو یہ ہوتا نہیں، لیکن غالباً اگر کبھی کبھار بعض جگہ جہاں پر پانی کی قلت ہو تو وہاں پر اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہاں پر پانی کی کمی ہوتی ہے، تو جہاں پر پانی کی کمی ہو تو وہاں پر جائز ہے کہ ہم کیا کریں، وہاں پر جائز ہے کہ ہم نا وہاں پر ہے نا یعنی پانی کی بجائے اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر سکتے ہیں۔ تو تیمم ہے نا، تو یعنی اس لیے کہ نا اگر زندگی کی حالت میں بھی یہ جائز تھا کہ انسان ہے نا کہ اگر پانی نہ ہو تو وہ تیمم کرے، تو اس طرح سے اگر میں تو غسل دینے کی صورت میں بھی اگر پانی نہ ہو تو ہمیں نا ہم یہ تیمم کرائیں گے، تیمم کرائیں گے۔ تو یہ پہلی تنبیہ جو یہاں پر ہے۔ اس کی بعد کی جو تنبیہ ہے کہ یعنی جو شخص کا احرام میں انتقال ہو، یعنی عمرے کی حالت میں، یعنی یا حج کی حالت میں، عمرہ یا حج کے دوران اگر اس کا انتقال ہو تو اس کو ہم غسل دیں گے، لیکن خوشبو نہیں لگائیں گے۔ اگر کوئی سے شخص کا انتقال ہوتا ہے احرام کی حالت میں، حج میں یا عمرے میں، تو اس حالت میں تو خوشبو نہیں لگائیں گے اس کو، بلکہ کیا کریں گے، اور نہیں اس کا اگر مرد ہو تو اس کا یہ نہیں ڈھانپیں گے، تو نہ خوشبو لگائیں گے۔ سیکھا ہم نے پڑھا تھا کہ نا غسل کے دوران خوشبو لگائیں گے، تو لیکن اگر احرام کی حالت میں اگر انتقال ہو تو اس کو غسل دیں گے، غسل تو دیں گے لیکن خوشبو نہیں لگائیں گے، خوشبو نہیں لگائیں گے۔ نعم، اس کو خوشبو نہیں لگائیں گے، نعم۔ اس لیے کہ اور اس کا اگر مرد بھی ہو تو اس کا سر نہیں ڈھانپیں گے، کہ ہم جانتے ہیں کہ نا مرد کے لیے منع ہے احرام کی حالت میں کہ وہ اپنا سر ڈھانپے، وہ اپنا سر ڈھانپے۔ تو حرام میں جس کا انتقال ہوا تو اس کو نہ خوشبو لگائیں گے، نہ اگر وہ مرد ہو تو اس کو اس کا سر نہیں ڈھانپیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ حدیث میں فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ ایک شخص کا انتقال ہوا عرفہ کے میدان میں،
تو اللہ کے रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसको गुस्ल दो, दो और कफन दो, और फरमाया कि इसे खुशबू न लगाओ, और नहीं इसका सर छुपाओ, क्योंकि ये क़यामत के दिन लब्बैक कहता हुआ उठेगा। तलबिया कहते हुए वो उठेगा क़यामत के दिन, उसका जो हशर होगा, बहस। तो उम्मीद है ये मसला वाज़ेह है। इस तरह से अगर गसूल के बाद कोई गंदगी निकलती हो तो उसे साफ करेंगे, लेकिन दोबारा गसूल नहीं कराएंगे, यानी तो फिर से दोबारा गसूल की ज़रूरत नहीं है। और शर्मगाह को रोई से बांध दिया जाएगा। ठीक है ना, शर्मगाह को क्या करेंगे, रोई से बांध देंगे, ताकि फिर से कोई गंदगी ना निकले। यानी इसका मतलब ये है कि शर्मगाह में रोई डालकर उसे बंद कर देंगे। ठीक है ना। इस तरह से गसूल देने वाले शख्स को गसूल देने के बाद गसूल करना सुन्नत है। जिस शख्स ने गसूल दिया है मैयत को, उस शख्स के लिए सुन्नत है कि वो गसूल देने के बाद वो खुद गसूल करे। वो खुद क्या करे, गसूल करे। ये सुन्नत है। तो जिस शख्स ने मैयत को गसूल दिया, तो उसके लिए सुन्नत ये है कि वो गसूल देने के बाद मैयत को वो खुद गसूल करे, वो खुद क्या करे, गसूल करे। इस तरह से अगर किसी के जिस्म के टुकड़े अगर किसी के जिस्म के टुकड़े हो जाएं तो उसके हिस्सों को गसूल देंगे। यानी अगर अल्लाह ना करे कि किसी का इंतकाल हुआ है किसी हादसे में, और तो उसके जिस्म के टुकड़े हो गए, दो टुकड़े हो गए या तीन टुकड़े हो गए, या किसी और वजह से, तो हम क्या करेंगे इस हालत में, जो टुकड़े उसके मौजूद हैं उसको गसूल देंगे, और उसको क्या करेंगे, कफन में डाल देंगे। कफन में डाल देंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर कभी ये होता है कि गसूल देना मुश्किल है, तो फरमाया, तो आगे हमने कहा कि जिसको गसूल कराना मुश्किल हो, यानी वो बिल्कुल ही ऐसा हादसा हुआ बुरा कि उसके टुकड़े बहुत ज़्यादा हो गए, और अगर गसूल देंगे तो और ही ख़राब हो जाएगा जिसम, जो जिसम है, बॉडी है, और ख़राब हो जाएगा। तो मुमकिन तो क्या करेंगे इस हालत में, तो उसे तयम्मुम कराएंगे। और अगर ये भी मुश्किल है तो इसी कर्म आनी कफन पहना देंगे। यानी ये बात बहुत उसको टच करना मुश्किल हुआ था, टच ही करेंगे तो और हालत ख़राब हो जाएगी और जिसम ख़राब हो जाएगा। तो सिर्फ इस हालत में इसी कफन क्या करेंगे, पहनाकर दफन कर देंगे। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि ना किस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गसूल दिया गया। किस्सा ये हुआ कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, तो सहाबा किराम ने इख्तलाफ किया, क्या अल्लाह के रसूल को कपड़ों से निकालेंगे, उनको बरहना करेंगे और उनके कपड़े निकालेंगे, या उनके कपड़ों के अंदर ही उन्हें गसूल देंगे। जिस कपड़ों में उनका इंतकाल हुआ था वही कपड़ों में उन्हें उन्हें गसूल देंगे। तो इसलिए कि अब उनको तो जो मारूफ था सहाबा कराम को, कि जब भी किसी मय्यत का इंतकाल होता तो उसे उसके कपड़ों से निकाला जाता है और फिर उसे गसूल दिया जाता है। तो लेकिन ये मामला था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो उन्होंने कहा कि क्या आप गसूल देंगे, तो गसूल किस तरह दें, कपड़े निकाल कर या कपड़े के अंदर या कपड़ों के अंदर ही। तो वो इस तरह मौजूद थे अचानक। तो अब तीन साहबा कराम जो गसूल देने वाले थे, यानी एक तो उनके यानी दामाद अली रजी अल्लाह अन्हु, फिर इस तरह से उसामा बिन जैद, और उनके चाचा अल फضل बिन अब्बास। ठीक है ना। तो वो लोग उसमें थे, यानी कशमकश में कि क्या उनको गस्ल से के लिए कपड़े निकाले या नहीं निकाले। तो ऐसी हालत थी कि अचानक वो खड़े खड़े उनको नींद आ गई, सारे था वगैरह जो मौजूद थे। तो अचानक नींद आ गई या गशी तारी हो गई। तो फिर आ, तो उन्होंने एक आवाज़ सुनी, उन्होंने कि अल्लाह के रसूल को गस्ल दो उनके कपड़ों में, यानी कपड़े मत निकालो। तो फिर वो नींद से बेदार हो गए सारे साहबा कराम। तो फिर वो है ना, उन्होंने ऐसे गस्ल दिया। तो यहाँ फरमाती मैंने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कि जब लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गस्ल देने का इरादा किया, तो कहने लगे कसम अल्लाह की, हमें नहीं मालूम कि हम जिस तरह अपने अपने मुर्दों को के कपड़े उतारते हैं, तो आपके भी कपड़े उतार दें, या आप पर या इसी या, या इसे आप पर, आपके बदन पर रहने दें कपड़े, और ऊपर से गस्ल दे दें। तो जब लोगों में इख्तलाफ हो गया, तो अल्लाह ने इन पर नींद तारी कर दी। यहाँ तक कि इनमें से कोई आदमी ऐसा नहीं था जिसकी ठुड्डी इसके सीने पर न लग गई हो, यानी ये ठुड्डी जो होती है ये सीने पर लग गई, यानी नींद से, यानी झोंक आ गई। और इस वक्त घर के एक गोशे से किसी आवाज़ देने वाले की आवाज़ आई,
ایک آواز سنی انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پہنے ہوئے کپڑوں میں ہی غسل دے دو، یعنی کپڑے مت نکالو۔ آواز دینے والا کون تھا، یہ معلوم نہیں ہوا، اب غالباً فرشتے تھے ہوں گے، غالباً یہ فرشتے تھے ہوں گے نا۔ تو یہ سن کر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھ کر آئے اور آپ کو آپ کی کرتے کے اوپر سے غسل دیا، اور لوگ قمیص کے اوپر سے پانی ڈالتے تھے، اور اس طرح سے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آگے فرماتی ہے ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ، اگر مجھے پہلے یاد آ جاتا جو بعد میں یاد آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیویاں ہی آپ کو غسل دیتی، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ دی نہیں، یعنی وہ بھول گئے، یعنی وہ اس طرح سے۔ تو یہ قصہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا۔ یہ شارٹ قصہ ہے ایک، یہ روایت ابو داؤد میں ہے، ابو داؤد کی روایت مختصر ہے، لیکن اس کی تفصیل آئی ہے یہ حدیث میں، جو یہ طویل حدیث ہے، جو جو مسند احمد میں ہے، جو مسند احمد میں ہے، اس میں تفصیل سے پورا شروع سے آخر تک ذکر کیا گیا قصہ، ٹھیک ہے نا۔ اس کو ممکن نہیں کہ آپ لوگ اس کی اسکرین شاٹ لے لیں، تاکہ اگر کسی کو بعد میں پڑھنا ہے تو پڑھ سکتا ہے تفصیل سے، یعنی ہم، تو یہ اس طرح سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ تھا، یعنی کس طرح ان کو صحابہ کرام نے غسل دیا۔ ہم، اب اس طرح سے ہمارے مسائل ختم ہو گئے، غسل کے مسائل، اور ہم نے کہا تھا کہ نا میت کے متعلق چار چیزیں ہیں، وہ چیزیں کون سی چیزیں ہیں؟ میت کے متعلق چار چیزیں ہیں، کیا 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 کام ہے؟ اور ابھی تک ہم نے کیا پڑھ لیا؟ میت کے متعلق کیا کیا کام ہے، اور ہم نے ابھی تک کیا پڑھا؟ نہ، یہ ہم نے ذکر کیا تھا لاسٹ کلاس میں کہ میت کے متعلق چار کام ہوتے ہیں۔ پہلا کام جو ہم نے پڑھا، نعم، ہاں نہیں، یہ سیکنڈ کام ہے، نعم، کفن کا، لیکن کفن سے پہلے کیا تھا جو ہم نے پڑھا ابھی، غسل۔ تو پہلے غسل ہے جو ہم نے پڑھ لیا، پھر اس کے بعد اب ہے، اس کے بعد جو ہے اب ہم ابھی جو پڑھیں گے کفن پڑھیں گے آج، پھر اس کے بعد جو پڑھیں گے وہ ہے اس کی جنازے، نماز جنازہ، پھر اس کا دفن، پھر اس کا جو دفن، نعم۔ تو یہ چار چیزیں، تو ہم نے ابھی ہم نے پڑھ لیا اس کا، غسل پڑھ لیا، ابھی پڑھیں گے کفن، اس کا پڑھیں گے، کفن کے مسئلے پڑھیں گے، نعم۔ کفن کے مسائل آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میت کو کفن دینا، یہ کفن پہنانا فرض کفایہ ہے، فرض کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے، یہ یعنی ضروری ہے، لیکن سب کو ضروری نہیں کہ سارے سارے مسلمان دیں، بلکہ اگر ایک بھی دے کافی ہے، فرض کفایہ ہے، یہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے میت کو کفن پہنانا۔ اس طرح سے یعنی کفن کی خریدی، یعنی کفن کی خریدی میت کے مال سے ہوگی، یعنی اگر کوئی نہ ہو، اگر کوئی کفن خرید کر دینے والا نہ ہو، یا کوئی اس کو فری میں دینے والا ہو، کوئی نہ ہو، تو کوئی چیریٹی نہیں ہے، تو میت کے مال سے لیں گے کفن کی خریدی۔ کفن میں سنت یہ ہے کہ مرد کو تین کپڑوں میں کفن دیا جائے گا، تو کفن مرد کو تین کپڑوں میں، مرد کو تین کپڑوں میں دفن دیا جائے گا، تین کپڑوں میں، اور ٹھیک ہے نا۔ تو مرد کے لیے سنت یہ ہے کہ کفن دیا جائے گا مرد کو تین کپڑوں میں، تین لفافوں میں، تین جو لفافے ہوتے ہیں، جو تین کپڑے جو ہے رول کپڑوں کے، اس میں دفن کیا جائے گا، وہ تفصیل آگے آئے گی۔ اس طرح سے مرد کی کفن میں افضل یہ ہے کہ اس میں قمیص اور عمامہ نہ ہو، یعنی کپڑا بس، خالی کپڑے ہوں، بس پلین کپڑا ہو، یعنی وہ نہ ہو کرتا یا سلا ہوا کپڑا نہیں، بلکہ خالی بس کپڑا ہو، عام کپڑا خالی، اور امامہ بھی نہ ہو، یعنی سر باندھنے کے لیے کچھ ٹوپی یا امامہ پگڑی وغیرہ نہ ہو۔ تو مرد میں یہ افضل ہے کہ نہ ہو، اگر ہو بھی سکتا تو حرج نہیں ہے، یعنی اگر کسی کا اس کو عام کپڑا نہیں ملا، صرف امامہ اس کے کپڑے ہے تو جائز ہے، نہ یعنی احرام کی طرح، یعنی بالکل، یعنی سادہ، جو سادہ کپڑا ہے نا، ویری گڈ، قمیص نہ ہو، امامہ نہ ہو، ویری گڈ۔ لیکن اگر کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ نا، کبھی وہ چادر وغیرہ نہیں ملتی جو عام کپڑا ہے، تو مجبوراً میت کے کپڑوں میں دفن کرنا پڑتا ہے۔ اب سوال آپ لوگ جانتے ہیں جو قصہ ہے مشہور، صحابی رسول مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ بہت مالدار صحابی تھے، اتنے مالدار تھے کہ قریش میں ان سے مالدار جوان کوئی نہیں تھا، کہ وہ جوان تھے، وہ بھی نوجوان تھے، ان کے والد بہت مالدار، والدہ بہت مالدار، اور یہ خود اللہ نے ان کو خوبصورتی دی، مال دیا تھا، سب دیا تھا،
और ये पढ़ना लिखना जानते थे, इनको पढ़ना लिखना भी आता था। यानी हर तरह से, यानी तालीम के लिहाज से भी, माल के खूबसूरती, सब लिहाज से बहुत माशाल्लाह बेहतरीन थे। बल्कि मक्के में इनसे बेहतर कुछ खुश अच्छा जवान था ही नहीं। और ये ऐसी खुशबू लगाते, यानी कई दूर तक इनकी खुशबू सुने आती, यानी ये ना लोग सूंघते हैं, और ये खुशबू महकती, यानी बहुत मालदार थे। तो फिर इन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो इनकी माँ ने इन्हें कहा कि इनकी माँ बहुत गुस्से में आ गई। कहा कि मैं तो इनकी माँ ने कसम खाया कि मैं अ, जब तक कि इस्लाम ना छोड़ दे मैं खाना नहीं खाऊंगी। लेकिन ये इस्लाम नहीं छोड़े। इनको अपनी माँ से मोहब्बत थी, लेकिन फिर भी इस्लाम की मोहब्बत गालिब आ गई। और ये होना चाहिए, जब इस्लाम पे आ गई तो इस्तकामत, तो कुछ भी हो जाए। फिर इनकी माँ ने क्या किया, इनको बंद कर दिया घर के अंदर कैद में, और खाना पीना बंद कर दिया। लेकिन जब देखा कि फिर भी ये इस्लाम नहीं छोड़े, तो फिर छोड़ दिया इनको। तो एक दफ़ा गुजरे मक्के में ही, अल्लाह के रसूल के पास जब आए, अल्लाह के रसूल के पास, तो अल्लाह के रसूल बहुत रोए। बहुत रोए। तो साहबा कराम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह आप क्यों रोते हैं? कहा कि ये जो मुसअब बिन उमैर अभी जो सामने आके बैठा है, अभी इसके कपड़े सही नहीं है, इसके फटे हुए कपड़े हैं अभी। हालांकि ये कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले इससे बेहतर, इससे खूबसूरत और इससे यानी कपड़े पहनने वाला मक्के में और कोई नहीं था। तो लेकिन देखिए सुभान अल्लाह, उन्होंने दीन के लिए सब चीज़ की कुर्बानी दी। और ये चाहिए, और ये कुर्बानी होती है कि दीन के लिए कुर्बानी दी जाए हर चीज़ की। तो फिर इस तरह से फिर फिर अल्लाह के रसूल ने सबसे पहले इनको जो मदीना भेजा। जब जब वो हुई थी ना बैयतुल अक़बतुल ऊला, पहली बैयत जो अल्लाह के रसूल ने अंसार से बैत ली थी, बैया ली थी मक्का यानी मिना में, यानी हज के मौसम में। तो पहली जो हुई थी बैत, तो उस वक्त अल्लाह के रसूल ने अंसार के साथ इनको है ना, इनको रवाना किया और साथ में भेजा। तो इसलिए इनको लक़ब दिया गया अव्वलु सफ़ीरिन फिल इस्लाम, इस्लाम के सबसे पहले सफ़ीर, द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ इस्लाम। तो ये मदीना गए और वहाँ पर लोगों को तालीम दी वगैरह, इनके हाथों में बड़े लोग, बल्कि अंसार, सारे अंसार, अक्सर अंसार के लोग इनके हाथ पे इस्लाम कबूल करे। फिर जंग बदर में शरीक हुए, फिर गज़व उहद में शरीक हुए। गज़व उहद में तो गज़व उहद में जब जब शरीक हुई है, तो इससे कबल जब गज़व बदर में इनका भाई जो था वो भी यानी कैद हुआ था, वो काफिर था। तो इन्होंने, तो एक अंसारी साहबी इनके भाई को बांध रहे थे कैद में। तो इनका गुजर हुआ भाई का, मुसाब बिन उमैर का। तो इनके भाई ने कहा कि और जोर से बांधो कैद। तो भाई ने कहा कि ए मुसाब भाई, तुम तो मेरे भाई हो और तुम तो उल्टा कह रहे हो। मुझे तवक्को थी कि तुम कहोगे कि ना छोड़ दो इसको। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मेरे भाई नहीं हो। बल्कि कहा कि ये अंसारी मेरा भाई है, ये अंसारी जो तुम्हें कैद मान रहा है ये मेरा भाई है, ना कि तुम। हालांकि वो सगा भाई था उनका, लेकिन जब दीन छाड़ गया तो फिर वो भाई नहीं रहा। तो गज़व उहद में ये शहीद हुए। गज़व उहद में ये जंग लड़े और शहीद हुए गज़व उहद में। तो गज़व उहद में जब शहीद हुए ये, तो अ, बहुत ही माल, और उस वक्त मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब थी, यानी माली हालत कमज़ोर थी। तो कफन नहीं थे। तो जब इनका मामला है कफन का, यानी कि ये शहीद थे, तो कफन के लिए कपड़े नहीं मिले। तो बस और इनकी जब लोगों ने देखा कि इनका है क्या, ये इनकी घर में क्या है, तो कुछ नहीं था। सिर्फ एक ही कपड़ा था जो पहने हुए थे वो, और कुछ नहीं था। और वो ऐसा कपड़ा था कि अगर इनका सर ढांपते तो पैर नजर आए थे, और अगर पैर ढांपते तो सर नजर आया था। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इसका सर ढांप दो, इनका सर ढांप दो, मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु का, और पैर पर कुछ पत्ते डाल दो, और पैर पर कुछ पत्ते डाल दो। तो देखिए कि ना किस तरह, तो यहाँ पर ये दफन हुए अपने कमीज के, उनके अपने कमीज में। तो इसलिए फरमाते खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह अन्हु, जब उन्हें देखा कि ना इसी हालत मुसअब बिन उमैर की, कहा कि ना ये वही लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया सूरह अहज़ाब में, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहादुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबह व मिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला। भाई इसलिए तो ये मर्द का मर्द का कफन अफजल है कि कमीज ना हो और इमामा ना हो। लेकिन अगर मजबूरी है, जिस तरह मजबूरी हुई थी ये मुसअब बिन उमैर के साथ रज़ी अल्लाह अन्हु, तो फिर जायज़ है। इस तरह से ये है कि औरत के लिए सुन्नति है कि औरत को 5 कपड़ों में कफन दिया जाए। मर्द के लिए 3 कपड़ों में, और औरत के लिए 5 कपड़ों में दफन दिया जाएगा। और ये 5 कपड़ों की तफसील ये है कि 5 कपड़े कौन से होंगे औरत के। पहला होगा तहबंद, जो जो जिस्म के निचले हिस्से को ढांपेगा।
سیکنڈ دوپٹہ ہوگا، تیسرا جو ہوگا قمیص، چوتھا پانچواں دو لفافے، دو لفافے یعنی دو اوپر دو، دو چادر یعنی دو چادر، دو چادر جو میت کے ارد گرد لپیٹی جائے گی۔ تو عورتوں کی تفصیل اس طرح سے، عورتوں کی کفن کی تفصیل اس طرح سے ہے۔ تو پانچ کپڑے ہوں گے، تو پانچ کپڑوں کی تفصیل: پہلا تہبند جو کہ جسم کے نچلے حصے کو ڈھانپے گا، اور سیکنڈ دوپٹہ، اور تیسرا قمیص، اور چوتھا پانچواں دو چادر، دو لفافے جو میت کی ارد گرد لپیٹی جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے یہ کیا ہے، تو اس طرح سے یہ تفصیل ہے عورتوں کی کفن کی۔ امید ہے کہ بات واضح ہے انشاءاللہ۔ اگر کوئی سوال ہو تو سوال کریں۔ اس کے بعد ابھی یہ پڑھیں گے کہ نا عورت، اب عورت کی جو پانچ کپڑوں میں کی ترتیب کیا ہے؟ اچھا الحمد للہ، عورتوں کی جو ترتیب ہے کفن کی، کہ عورت کو کفن دیتے وقت پہلے تہبند نہیں باندھی جائے گی، سب سے پہلے پہلے تہبند، پھر اوپر والے حصے پر قمیص سیکنڈ، پھر اس کے بعد سر پر دوپٹہ، پھر دو چادر لپیٹیں گے عورت کے لیے۔ تو یہ جو ترتیب ہے، جو اس طرح سے پہلے، سب سے پہلے تہبند باندھی جائے گی عورتوں پر، عورت کے لیے، پھر قمیص، پھر سرد کے ارد گرد دوپٹہ، پھر یہ تین ہو گئے، پھر دو چادر یا دو لفافے سے لپٹ دیا جائے گا۔ کفن کا سف کفن کا سفید ہونا افضل ہے، کفن کا کپڑا سفید ہونا یہ افضل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کفن جائز ہے کہ کوئی اور رنگ میں ہو، لیکن افضل کیا ہے، اس کے سفید کپڑا ہو، وائٹ۔ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین یمنی سوتی سفید رنگ کے چادروں میں کفن دیا گیا تھا، جن میں قمیص اور عمامہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک حدیث میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم سفید رنگ کے کپڑے پہنا کرو، کیونکہ یہ تمہارے کپڑوں میں سب سے بہتر کپڑا ہے، اور اسی میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو، اور ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ سفید کپڑے پہنا کرو دنیا میں بھی، دنیا میں بھی یعنی زندگی میں بھی انسان کے لیے بیسٹ یہ ہے، افضل یہ ہے کہ وہ سفید کپڑے پہنے ہمیشہ، اور یہ سنت ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سفید رنگ کے کپڑے پہنا کرو، فرمایا کہ کیونکہ یہ تمہارے کپڑوں میں سے سب سے بہتر کپڑا ہے، اور اسی میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو، اور کفن کے لیے بھی یہ سب سے بہتر یہ ہے، اور تمہارے سرموں میں سب سے اچھا اسمد ہے، یہ روشنی بڑھاتا ہے اور پلک کے بالوں کو اگاتا ہے۔ طيب، یہ تو جو کحل ہے، جو سرما ہے، اس کے متعلق ہے۔ اس طرح سے اچھا کفن پہننا سنت ہے، کہ کفن اچھا ہو، یعنی ایک اچھا کفن ہو۔ اس لیے حدیث میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو اچھا کفن دے، تو اس حکم ہے۔ اور اچھے سے مراد صاف ہو اور موٹا ہو، نہ کہ مہنگا، یعنی اچھے سے مراد یہ نہیں کہ بہت مہنگا لیا جائے، بھاری 1000 2000 کا نہیں، میں تو مہنگا نہیں، تو مہنگا ضروری نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ صاف صاف ہو اور موٹا ہو، ٹھیک ہے نا؟ مہنگا ضروری نہیں ہے۔ اور کفن کے لیے نئے کپڑے بھی ضروری نہیں ہے، ہاں اچھی بات ہے لیکن ضروری نہیں ہے، پہنے ہوئے کپڑے بھی جائز ہیں۔ اور صحابہ کرام کے زمانے میں تو اکثر نئے مشکل تھے، اکثر اکثر صحابہ کرام کے زمانے میں یعنی جو پہنے ہوئے کپڑے ہی اسی میں دفن کی، یعنی اسی میں کفن انہیں پہنایا جاتا تھا۔ تو کفن کے لیے نئے کپڑے ضروری نہیں، لیکن اچھا اچھا کفن یہ سنت ہے۔ ریشم میں مردوں کو کفن دینا حرام ہے، ہاں یہ بھی حرام ہے، مردوں کے لیے حرام ہے کہ ریشم، سلک جو ہے، سلک، حریر جو حریر، حریر منع ہے، جو عربی میں حریم کہتے ہیں، اردو میں ریشم، تو ریشم میں مردوں کو کفن دینا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ سمجھتے ہیں ریشم، ہاں جو سلک، جو خالص سلک ہو، یعنی پولیسٹر وغیرہ الگ مسئلہ ہے۔ عورتوں کو ریشم میں کفن دینا جائز ہے لیکن مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ ایک یہ ہے نعمت کی یا اسراف کی علامت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو عورتوں کو ریشم میں کفن دینا جائز ہے، لیکن اسی کو عورتوں کو تو جائز ہے، دنیا میں بھی جائز ہے، لیکن مردوں کو تو ریشم دنیا میں منع ہے، زندگی میں منع ہے، لیکن مکروہ ہے عورتوں کو، افضل نہیں ہے یعنی۔ بہت زیادہ قیمتی کفن یہ بھی مکروہ ہے، بہت زیادہ قیمتی کفن پہنانا بھی مکروہ ہے، بہت زیادہ قیمتی کفن بھی پہنانا مکروہ ہے۔ یہ بخاری کی روایت میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا دیکھا جس سے مرض کے دوران آپ پہن رہے تھے، یعنی جس مرض میں آپ کا انتقال ہوا، تو آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ نا، یا آپ کو ایک معلوم ہو گیا تھا کہ اب مرنے والا ہوں،
तो जो कपड़े आप पहने हुए थे, तो उस पर कुछ धब्बे लगे थे, ज़ाफ़रान का वगैरह। तो आपने फरमाया कि इस कपड़े को धो लेना, मैं जो कपड़े अभी पहना हुआ हूँ इसी को धो लो, और मुझे और दो मिला दो, ताकि तीन कफन, तीन कपड़े सुन्नत है, तो इसी को और दो एक्स्ट्रा ऐड कर दो, और दफन और कफन देना। तो उनकी जो शायद बेटी थी या कोई उनके बेटा था, तो उन्होंने कहा कि ये तो पूरा पुराना कपड़ा है आपका, आप जो कपड़े पहने हुए हैं ये तो पुराने हैं, तो आपके लिए हम नए ला लेंगे ना। तो उन्होंने क्या फरमाया, नहीं, जिंदगी जिंदा आदमी की नए कपड़े का ज़्यादा मुस्तहक है, मैं तो मरने वाला हूँ, तो जो जिंदा है वो ज़्यादा मुस्तहक है नए कपड़ों का। फरमाया ये तो पीप और खून की नज़र होने वाला है, नहीं तो खराब होने वाला है कपड़ा, तो मर्दों के लिए नए कपड़ा क्यों। ठीक है ना, ये उनकी राय थी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की। तो बहुत ज़्यादा कीमती कपड़ा पहनना भी, कफन पहनाना मकरूह है, अच्छी बात नहीं है। शहीद को कफन नहीं पहनाएंगे, शहीद को कफन नहीं पहनाएंगे, बल्कि इसी के कपड़ों में इसे दफन करेंगे। शहीद को कफन नहीं पहनाएंगे, बल्कि इसी के कपड़ों में इसे दफन करेंगे। तो ये तो पढ़ना पेपर लिया कि कफन को, शहीद को इसी के कपड़ों में लाजमी है। ठीक है ना। और ना, और शहीद को ना गसुल भी नहीं देंगे, शहीद को गसुल नहीं देंगे, और ना उसकी नमाज पढ़ेंगे। बेखिलाफ जो एहराम में इंतकाल हुआ, जिसका एहराम में इंतकाल हुआ, तो उसको हम गसुल देंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, लेकिन खुशबू नहीं लगाएंगे, खुशबू नहीं लगाएंगे, और सर भी नहीं ढापेंगे, और सर भी नहीं ढापेंगे। इसलिए कई बार अगर आप लोगों ने हरम में नमाज पढ़ी हो, तो देखेंगे जहाँ पर होती यानी जनाजे की नमाज, तो हज में खासतौर पर ये नज़र आता, हज में या रमज़ान में, यानी जनाजे रहते हैं कई जनाजे, तो जो हरम में आते हैं नमाज पढ़ाना, नमाज के लिए, तो तकरीबन 10-15 जनाजे होते हैं, उसमें से एक दो का सर खुला होता है, बाकी पूरे ढपे हुए होते हैं मुकम्मल कफन में, सिवाय एक दो के। तो वो निशानी है कि ये एहराम में इसका इंतकाल हुआ, एहराम में यानी उम्रे में या हज में, अगर अरफा में या मीना में या मुजदलिफा में, इस तरह से। तो शहीद को तो नहीं, शहीद को तो ना कफन पहनाएंगे, ना दफन करेंगे, सॉरी, ना गुस्ल देंगे, बल्कि उसी के कपड़ों में उसे दफन कर देंगे। कफन को खुशबू लगाना सुन्नत है। उसमें है कि ना, सर हाँ, हदीस में है कि सर न ढाको। अब तो उससे अब क्या होता है कि ना, अब ये मुश्किल है कि सिर सर ढापेंगे, यानी सर खुला है, और लेकिन ना रास से मुराद कभी होता है, रास से मुराद कि पूरा पूरा मुंह आया, पूरा सर आया था, इसमें चेहरा भी दाखिल है। तो ये आम आदत बनी हुई है कि यहाँ तक हरम में भी जो होता है कि चेहरा भी खुला होता है, चेहरा भी खुला होता है। हम्म। कफन को खुशबू लगाना मुस्तहब है, चाहे मईत हो, मईत मर्द हो या औरत हो, औरत के लिए भी जायज़ है, मईत और दोनों के लिए, मईत और मर्द, मर्द और औरत दोनों के लिए कफन, एक तो उसको गुस्ल देखत, यानी जब गुस्ल देंगे तो जब भी खुशबू लगाएंगे, और कफन में भी लगाएंगे, और कफन के अंदर भी खुशबू लगाएंगे। इसे फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब तुम मैं तो खुशबू की धोनी दो, तो इसे 3 बार धोनी दो, यानी उसको बखूर लगाओ, बखूर या धुआं, जो खुशबू का धुआं होता है वो। मैत को हनूत लगाना सुन्नत है। हनूत का मतलब क्या है, हनूत लगाना यानी क्या मतलब, मैत को, उसकी मैत के बदन में खुशबू लगाएंगे, जो अंबर हो, काफुर वगैरह, बदन में और कफन में, बदन में और कफन में, ये भी हदीस में है। तो इस तरह से हज और उम्रा के हराम वाले मुहरिम शख्स को खुशबू नहीं लगाएंगे, ये तो पढ़ लिया हमने। हज और उम्रे के हराम वाले मुहरिम शख्स को खुशबू नहीं लगाएंगे। मैत को खुशबू लगाने का तरीका क्या है, कि मैत को खुशबू लगाने का तरीका ये है कि ये वसूल के बाद इसके सजदे करने वाले आज़ा पर, जो जहाँ पर वो सजदा करता है, हदीस में है कि मुझे हुक्म दिया गया कि माँ मैं 7 पार्ट्स पे सजदा करूँ, जो उन्होंने पढ़ लिया। उम्र तो अना असुद अला सबअति आज़ा, तो वो पेशानी, नाक, दोनों हाथ, दोनों घुटने, दोनों घुटने और दोनों पाँव पर खुशबू लगाएंगे, और यानी जोड़ों में, बगलों के नीचे, और सारे मैत को भी खुशबू लगाएंगे, तो हरज नहीं है। तो यहाँ तो इन जगहों पर खुशबू लगाएंगे मैत में। तो इस तरह से जो मसला है आगे, कि अगर खावन के फौत होने की इद्दत गुजारने वाली औरत फौत हो जाए, तो इसे भी खुशबू लगाएंगे। हम जानते हैं कि अगर किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाए, किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाए, तो उस पर लाजमी है कि वो इद्दत गुजारे 4 महीने 10 दिन, और उसमें वो करेगी इहदाद। इहदाद से मुरादी है कि खुशबू नहीं लगाएगी, और जीनत इख्तियार नहीं करेगी।
खुशबू के नहीं लगाएगी, अच्छे कपड़े नहीं पहनेगी 4 महीने 10 दिन तक। अगर इसी दौरान, इद्दत के दौरान, अगर औरत का इंतकाल हो जाए, तो जायज़ है कि हम क्या लगाएं, लगाएं औरत को खुशबू, मसला नहीं है। ये नहीं बोलना कि ये तो अभी इद्दत में थी, नहीं लगा सकते। अब हम पढ़ेंगे तफसील, यानी मईत को कफन किस तरह पहनाएंगे तफसील से। मईत को कफन किस तरह पहनाएंगे तफसील से। पहला मसला ये है कि सबसे पहले एक 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 जो कपड़ा बिछाएंगे, आम जो जो कपड़ा क्या करेंगे उसे बिछाएंगे, और फिर खुशबू रखेंगे। फिर सेकंड चादर बिछाएंगे, फिर खुशबू रखेंगे, फिर थर्ड चादर। सर ठीक है ना, ये मर्द के लिए। पहली चादर बिछाएंगे, उसको खुशबू रखेंगे, लगाएंगे। फिर सेकंड चादर, फिर लगाएंगे खुशबू, फिर थर्ड चादर। ठीक है, इस तरह से। फिर मैयत को ढांपते हुए आहिस्तगी से उठाकर कफन पर लटाएंगे। फिर मैयत को ढांपे हुए, यानी ये ना को उसको बगैर कपड़े के लाएंगे नहीं, उसको यानी कफन नहीं, जब भी जब लाएंगे तो भी लाजमी उसकी शर्मगाह पे कपड़ा हो, यानी गसूल देने के बाद। जब गसूल दिया गया उसको, जब जब में सुखा दिया गया, फिर जब लाएंगे कफन पर तो आहिस्ता से, यानी उसको एक उसकी शर्मगाह यानी डबी भी हो, उठाकर लाएंगे और कफन पर लिटाएंगे सीधा। क्या करेंगे, सीधा उसे क्या लिटाएंगे कफन पर। फिर रोई में खुशबू लगाकर फिर रोई में खुशबू लगाकर पिछली शर्मगाह में रखकर बांध दिया जाएगा। फिर रोई में खुशबू लगाकर रोई को में खुशबू लगाकर पिछली शर्मगाह जो है उसमें लगा डालकर उसमें रखकर उसको बंद कर देंगे। फिर रोई में खुशबू लगाकर फिर इस तरह से रोई में खुशबू लगाकर नाक, मुंह और दो कान में रख देंगे। ये भी नाक में भी, मुंह के अंदर भी, कान, तीनों के अंदर रोई में उसमें डालेंगे, खुशबू डालेंगे, खुशबू कोई भी खुशबू हो, बेहतर है काफूर वगैरह। तो ये खुशबू लगाकर डाल देंगे। ठीक है ना, उसके नाक में, मुंह में और दो कान में। इस तरह से सजदा करने वाले आज़ा पर भी खुशबू लगाएंगे, सीने पर, यानी सॉरी बस पेशानी, दोनों हाथ, दोनों घुटने, पैर। फिर क्या करेंगे, फिर सर और दाढ़ी और सारे जिस्म पर खुशबू लगाएंगे। फिर सर, दाढ़ी और सारे जिस्म पर खुशबू लगाएंगे। अगर औरत को दाढ़ी नहीं है तो फिर उसके बालों पर, और इस तरह से। फिर ऊपर वाले कपड़े को बाएं तरफ से दाएं पहलू डाल दिया जाएगा, यानी कपड़े बिछे हुए हैं, उसको ऊपर रखा गया, तो जो बाएं तरफ से दाएं तरफ डाल दिया जाएगा कपड़ा। फिर दाएं जानिब से बाई बाई जानिब को क्या करेंगे, ये एक कपड़ा डाल देंगे। फिर दूसरा कपड़ा भी, और तीसरा, और बाकी इस तरह का करेंगे। फिर इसका सर और पाँव के पास डाल दिया जाएगा। फिर बाकी जो कपड़े बाकी बच गए, सर और पाँव के साथ डाल दिया जाएगा, जो कपड़ा बाकी बच गया। फिर रस्सी वगैरह के साथ बांध दिया जाएगा। ठीक है ना, फिर कफन को बांध देंगे ताकि अलहदा ना हो। लेकिन दफन के वक्त खोल देंगे, जब दफन करेंगे, यानी जब डाल देंगे हम कब्र के अंदर मैयत को, तो निकलने से पहले ये रस्सी खोल देंगे, यानी कफन को खोल देंगे, खोल के निकलेंगे। यानी कफन निकालेंगे नहीं, बस जो रस्सी थी वो खोल देंगे, या जो उन्होंने बांधा था वो खोल देंगे, जो क्रीटी वगैरह जो बांधी थी वो खोल देंगे। कब, वो कब्र के अंदर। औरतों की कमीज, हमने कहा कि औरत, ये तो मर्दों का था, औरतों में हमने कहा कि 5 कपड़े हैं। औरतों में एक क्या है, तहबंद, कमीज, दुपट्टा और 2 कपड़े। तो अब तहबंद तो वाजे है, जो नीचे जो जिस्म के जो निचले हिस्से को जो छुपाती है और ढांपती है। कमीज क्या है, कमीज से मुराद ये है कि जो गर्दन की जड़ से पांव तक होता हो, उसका गरेबान भी ना हो, आस्तीन, बगैर गरेबान आस्तीन के, बगैर गरेबान और आस्तीन के। तो वो किस तरह का कपड़ा हो कमीज, वो कमीज किस तरह हो गया ना, वो एक लंबा कपड़ा हो, उसके बीच में सुराख दिया जाए। अभी जो दिक्कत आएगा कि औरतों को कमीज इस तरह पहनाएंगे कि कमीज का निचला हिस्सा बिछा जाएगा, यानी उसका, यानी उसकी फोटो, मैं भूल गया लगाना उसको यहाँ पर। जो फोटो होती है, जो तरीका है औरतों की कमीज का, कि लंबा कपड़ा हो, और फिर बीच में क्या किया जाए उसको, उसके बीच में एक सुराख हो जाए, यानी सर के असर निकलने के लिए। ठीक है ना। फिर सबसे पहले वो कमीज का जो कपड़ा है, जो कमीज का जो निचला हिस्सा है, उसको क्या बिछा देंगे। फिर फिर मैयत को रख देंगे। फिर क्या करेंगे, लेटे बाद जब मैयत को रख देंगे तो फिर ऊपर का जो हिस्सा है उसके ऊपर से क्या करें, डाल देंगे। ठीक है ना। और ऊपर के बाकी हिस्से समेट कर निसर की तरफ रख देंगे।
फिर मैयत को गसुल के तख्ते से आहिस्तगी से उठाकर इसे बिछे हुए कफन पर उसे उलटा देंगे, और कमीज का जो हिस्सा सर के पास था उसको सर की तरफ से सर की तरफ उस तरह उलट कर पैरों की तरफ बढ़ा देंगे। ठीक है ना। इसकी इंशाल्लाह अगर फोटो हो तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बताऊंगा आप लोगों को बिस्मिल्लाह ताला। ठीक है ना। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि वाजे है ना इंशाल्लाह, ये तरीका किस तरह है औरतों का जो औरतों की औरतों की जो कमीज का तरीका है। ठीक है ना। ठीक है, वाजे है, चल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो और वाजे इंशाल्लाह। तो जो तरीका है कमीज का औरतों के, उम्मीद है कि ना। तो इस तरह से ही क्या होगा कि ना अभी देखिए ये तो फोटो है। ये तो इस तरह से पहले इसको ला के रखेंगे मय्यत को, उसकी शर्म का ढबी हुई है। फिर उसको यहाँ पर कपड़े रख दिए, फिर यहाँ पर वो कपड़े यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर जो एक्स्ट्रा कपड़े यहाँ ऊपर सर के ऊपर, फिर मुकम्मल सर ढाँप दिए, फिर रस्सी बांध दी इस तरह से कफन। ठीक है ना। ये तो अच्छा, ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये इस तरह से रस्सी बांध देंगे। ना। ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बात वाज़ेह, इंशाल्लाह वाज़ेह है। तो इस तरह से हमारे ये मसले ख़त्म हो गए किसके, ये मसले ख़त्म हो गए कफन के। भाई तो कफन देने के मसले ख़त्म हो गए। ठीक है ना। ठीक, शायद मेरे से आज काफ़ी है। अब हमारे तकरीबन जो मसले बाकी रह गए हैं, अब तीन मसले, अब दो मसले बाकी रह गए। अभी हमारा जो मईत के जो चार मसले थे, उसमें से चार में से दो हो गए। गस्ल और कफन दोनों हो गए, और दो बाकी है। क्या है ये हमारा ये नमाज जनाजा और दफन। ना बस नमाज और दफन, ये दो बाकी रह गए। अ, मुमकिन है कल क्लास भी मुमकिन है कि हो जाए इंशाल्लाह। अब मैं कोशिश करूँगा कि अगरचे आधा घंटा हो जाए, अगर कल। लेकिन अगर कल मुश्किल हो तो इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते इंशाल्लाह, अगले हफ्ते दो क्लास कर लेंगे। अगले हफ्ते चारशंबा और जुमेरात, यानी बुध और जुमेरात अगले हफ्ते। तो और अगले हफ्ते इंशाल्लाह हमारा आखिरी हफ्ता होगा क्लास का। यानी फिर रमज़ान से कि अगले हफ्ते आखिरी हफ्ता है, जो वक्त मिलेगा पढ़ने का। उसके बाद के हफ्ते तकरीबन जुमेरात को मुमकिन है कि क्या हो, जुमेरात को रमज़ान हो। ठीक है ना। तो अगला हफ्ता आखिरी होगा इंशाल्लाह हमारा। इसके यानी इंशाल्लाह जो रमज़ान से पहले की जो क्लास रहेंगे, तो कोशिश करेंगे कि ना अगले हफ्ते दो क्लास करके ख़त्म कर लेंगे, नमाज जनाजे के मसाइल और ये दफन के। और मुमकिन है कि मसले बाकी रह जाएं, इसलिए कि और भी मसले हैं, ताज़ियत के, दफन के बाद के वगैरह। लेकिन कोशिश करेंगे कि अगर हो जाए तो इंशाल्लाह हो जाएगा बिइज़निल्लाह ताला। या थोड़ी दो क्लास एक साथ करके तो लंबी भी कर लेंगे इंशाल्लाह बिइज़निल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह आज काफ़ी है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अगर 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 कल क्लास रही तो इंशाल्लाह मैं कल सुबह में आप लोगों को बोल दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, अगर कल क्लास रही तो। अगर मैंने कुछ नहीं डाला तो उसका मतलब क्लास नहीं है। अगर कुछ नहीं किया मैसेज ग्रुप में तो उसका मतलब क्लास नहीं है। अगर रहेगी तो इंशाल्लाह मैं मैसेज करूंगा बिइज़निल्लाह ताला। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।